Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Mind Buzz. So today we'll be studying a continuation of the previous lecture, that is Unit 5 Mensuration. This is the second part of that same unit. Today we'll be studying about surface area and volumes. Basically, if we talk about this entire section, surface area and volume is a little big chapter. It will have surface area of right circular cone, sphere, hemisphere, and then again volume of all the three. So इतना बड़ा चैप्टर को हम लोग एक साथ क्लब नहीं करेंगे. That's why we have divided into smaller sections, and today we'll just be concentrating on right circular cone, the surface area of right circular cone. So before directly starting with right circular cone, let me tell you what is a prism. So prism is a 3D shape that has two identical and parallel faces. So जब भी आप कोई शेप को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, आपको पहले देखना होगा कि क्या टू आइडेंटिकल फेसेस है और वो पैरेलल भी होना चाहिए. जैसे यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, दिस ट्राइंगुलर फेस and this triangular face both are identical and they are even parallel. So these two will be called the bases of the prism. Okay, so as this is triangle, so this is a triangular base prism. And what are the characteristics of other prisms? The other characteristics are that the other faces have to be flat. If you can see, यहाँ पे आप देखो ये बाकी जो faces है, this is a flat shape. ये बाकी तीनों ही फ्लैट शेप है. एंड जब भी हम कोई प्रिज्म को नेम करते हैं, हाउ डू वी नेम इट? इट इज़ बेसिकली बाय द शेप ऑफ देयर बेस. यहाँ पे ये बेस इज अ ट्राइंगल, बट सिमिलरली देयर कैन बी prisms which have the bases of different shape. It can be a four-sided square, it can be a rectangle, it can be a pentagon. So what are the different types of prisms based on their shape? This is a triangular prism because the base is a triangle. This is a pentagonal क्योंकि इसका देखो आप base का जो sides है, it is a five-sided shape. So इसको हम लोग बोलेंगे pentagonal. Similarly, hexagonal because it has 6 sides. Octagonal is for 8 sides and so on. But the other surfaces are flat for every prism. So this is the characteristics. Now ये दोनों मैंने अलग छोड़ दिया है because this is of course a square prism because the bases are square, but it also has a different name which you have already previously studied. It is called a cube, right? क्यूब को हम लोग कैसे जानते हैं? जिसका ऑल द साइड्स आर ऑफ द सेम. लाइक यहाँ पे वी हैव रिप्रेजेंटेड विथ एच, सो ऑल द साइड्स विल बी ऑफ एच यूनिट. और इसका अगर सरफेस एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है, या आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हो, इसका क्या है? सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6h square. Means 6 into the side square because it will have 6 faces and the area of each face is 8 square. Similarly, this next one, if you see here, this is a rectangle, right? All the sides are a rectangle of different lengths. Like this side is of length L, this is of B, and the height is H. So what do we call a figure of this structure? Nothing but a cuboid, right? Cuboid. और cuboid का surface area भी आपको पता है. You know that in a cuboid, this face and this face is similar, this face and this face is similar, and this face and this face will be similar. So this is your L into H, right? This is your B into H. And this is your L into B. So the total surface area will be 2 into LH plus HB plus LB. So these are the some special kinds of prisms which you've already studied about in your previous classes. Now moving on, I'll be sharing with you one more shape.
that is a cylinder. That also you have already studied, you know the details of it. But can you tell me why a cylinder is not a prism? Very easy, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वाइल प्रिज्म हैज़ अ फ्लैट फेस. यहाँ पे देखो ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है ये जो एरिया है, ये दिस पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, ये फ्लैट नहीं है. It can be possible that these two sides are parallel, which it is, but since it does not have a flat face, it is not qualifying to be a prism. इसका flat face नहीं है, that's why it is not a prism. Now tell me something. अब cylinder पहले पढ़े हो, you know how to calculate the surface area of a cylinder, right? ये कैसे आप निकालते हो? ये दो साइड तो सर्कल है, तो आप इसको ऐसे ओपन कर लो, सर्कल. फाइन, दिस इज वेरी इजी. द सर्कल्स आर नथिंग बट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट. और ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है, इसको आप काट लो ऐसे. इफ यू कट ओपन अ सिलेंडर, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ rectangle piece of sheet. Or rectangle, what is the area of a rectangle? Area is basically this length and multiplied to this breadth. Okay, so what can you derive out of it? ये length आप क्या है? ये length nothing, it is just the perimeter of the circle, right? तो perimeter of the circle क्या होता है? 2 pi r. And the height is the height of the cylinder represented by h. So the curved surface area of a cylinder is 2 pi r h. और टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर साइड्स, विच इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ये तो आपका रिविजन हो गया, आई बिलीव, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इन प्रीवियस क्लासेस, राइट? Okay, so now moving on, we'll see what pyramids are. Okay, pyramids are 3D shape that has single polygonal base. Prism में हम लोग क्या पढ़े थे? Prism will have two identical parallel face, but pyramids will only have one single polygonal base and triangular faces, right? The triangular face will meet at a common point called the apex. ये आपको ध्यान रखना है. Unlike prisms, it has only one base. This I just told you that prisms will have two identical parallel bases and pyramids will only have one. See, if you see here, both these structures are pyramids. ठीक है, ये भी एक pyramid है, ये भी एक pyramid है. What is the difference? The difference is in the shape of the base. This is a square base pyramid. Why? Because the base is a four-sided square. And this is a triangular base pyramid because the base is a triangle. But what is common between both of them? They meet at a common point called the apex, right? So this is how you can identify a pyramid. Moving on to the main crux of this chapter, which is the cone. Now यहाँ पे बोला गया है cone is not a pyramid. You have to think about yourself. What are the reason? What is needed to form a pyramid? The first thing is it has to have a polygonal base. But cone में क्या होता है? If you see a cone has a circular base. So cone is definitely not a pyramid. It has pyramidal like properties maybe, but it is not a pyramid. Because it also has a apex or the vertex like pyramid, but due to its base not being a polygonal structure, therefore it is not a pyramid. Now moving on to main part of this section is the right angular cone. Okay, we'll study about the right angular cone. पहले तो ये है कि आप cone को identify कैसे करोगे या cone को आप बनाओगे कैसे. Tell me, how will you make a right angular cone? सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. इससे आपको कोन बनाना है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड इट हैज़ टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एक स्टिक लगाओगे, ठीक है. अब दोनों साइड से यू टेक अ स्टिक दैट इज लॉन्ग इनफ, दैट इज एबल टू कीप योर
triangle fixed like this. Now you rotate the stick like this. You hold the both ends of the stick and you rotate it. जब आप इसको स्टिक को होल्ड करके रोटेट करोगे तो क्या होगा, आपका ये पूरा ट्राइंगल रोटेट करेगा. ये पूरा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल का टिप है वो यहाँ से स्टार्ट होके रोटेट करके इट विल कम बैक टू दिस पोजिशन, राइट. तो ऐसा करने पे आपका जो एंटायर स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा. मान लो आप यू आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट, बट आप विजुअलाइज करने की ट्राई करो. ये पूरा आप जब परफॉर्म करोगे, ये करने पे जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इट इज़ नथिंग बट अ राइट एंगुलर कोन, राइट. जब आपका ये राइट एंगुलर कोन बन जाएगा, सो दैट टाइम वी विल रिप्रेजेंट दिस पार्ट, वी विल टेल इट इज द रेडियस. ओके, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय r. This will be the height of the cone. This will be represented by h. And this side, this is the slant height or represented by l. यही 3 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. आपका जब राइट एंगुलर कोन बनेगा, so this will be the radius, this will be the height, and this will be your slant height. Now when we are talking about right angular cone, आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लिए थे, उसको स्टिक से घुमाए थे, वी फॉर्म्ड अ कोन, दैट इज अ राइट एंगुलर कोन. बट देयर कैन बी अदर टाइप्स ऑफ कोन, राइट. सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ कोन? इट इज सिंपल. राइट एंगुलर कोन में ये जो आपका ये आर एंड ये एच, ये दोनों मिला के जो एंगल फॉर्म करेंगे, विच इज 90 degree. Okay, it is a right angle. This is one basic condition to be a right angular cone. But if you see other types of cones, suppose in this example ये oblique cone दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 90 degree नहीं है. This angle can be anything, but it is not equal to 90 degrees. Therefore, we call it a oblique cone, but not a right angular cone. राइट एंगुलर में 90 डिग्री होना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. बट आपके सिलेबस में ओनली राइट एंगुलर कोन है, सो यू विल हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द surface area and volumes of right angular cones. Other cones are not covered in your syllabus as of now. तो अभी हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कोन का कैसे निकालो. सो बिफोर मूविंग ऑन डायरेक्टली टू कर्व सरफेस एरिया, आप 3 चीज़ें तो बहुत ध्यान से देख लो. आपको ये हमेशा यूज़ में आने वाला है, ठीक है. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ द रेडियस ऑफ द कोन, द सेकेंड इज़ द हाइट, एंड दिस इज़ योर स्लांट हाइट, ठीक है. दीज 3 थिंग्स यू विल ऑलवेज रिक्वायर. आइदर 2 दिए हुए रहेंगे, थर्ड निकालना होगा, और द अदर वे अराउंड. बट दीज आर द 3 थिंग्स विच विल बी नीडेड फॉर एनी कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द कोन. अभी चलते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया. तो इसको इजीली समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसको कट कर लेंगे, ठीक है. कोन को अगर आप कट करके ओपन कर लोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ओके, व्हेन यू कट इट फ्रॉम दिस प्लेस ए एंड बी, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस विच इज़ अ काइंड ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर. बट इसको हम लोग सर्कल नहीं बोल सकते. फाइन, इट इज़ नॉट अ सर्कल. सो इसलिए वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया. नाउ इसको हम लोग फ्लैटली क्यों ओपन किए, दैट इज़ द मेन रीज़न. सी, हम लोग को जब कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो वी नीड टू फाइंड अ मेथड हाउ टू डू इट. अगर आप इसको ओपन करके देखोगे, ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है जिसके पास यू हैव सम रेडीमेड फॉर्मूला टू कैलकुलेट. सो यू नीड टू ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर ट्राइंगल्स टू फाइंड आउट द टोटल एरिया. आप ईच ट्राइंगल का एरिया को जब ऐड करोगे, इट विल ऐड टू द टोटल एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. So to find out the area of each triangle, suppose you divide it into B1, B2, B3, each एरिया का बेस आप ऐसे मान लो आप डिवाइड करते रहोगे, तो यहाँ से एक एरिया का ट्राइंगल का एरिया रहेगा हाफ L इंटू B2 फॉर B2. फॉर अगर आप B1 के लिए करते, हाफ L इंटू B1, हाफ L इंटू B3.
एंड सो ऑन. आप जितना ट्राइंगल्स डिवाइड करोगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया हम लोग ये सारे एरियाज़ को ऐड करेंगे लाइक आई जस्ट मेंशन. यहाँ पे भी समेशन किया हुआ है. ये समेशन करके क्या निकालता है, जब आप कॉमन निकाल लोगे यहाँ से, इट इज़ हाफ एल इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3. सो ऐसे करके अगर आप सारा ट्राइंगल्स, यहाँ पे आप इतने सारे ट्राइंगल से डिवाइड किए हो राइट, ये पूरा एरिया को. सो अगर आप सारा ट्राइंगल्स के बेसिस को ऐड करोगे, ये B1 B2 B3 ऐसे करके जितने हैं, when you add them all the bases, what it will be? It will be nothing but the length of the curved boundary. ये जो आपके पास कोन था, ये ऐसे कोन को आप ऐसे कट ओपन किए थे और फ्लैट सरफेस में ले किए थे, और यहाँ से आप लोग B1 B2 B3 ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना के निकाले थे. तो आप जब सारे को ऐड करोगे तो नथिंग बट ये आपका मिलेगा, ये कर्व्ड बाउंड्री का आपको लेंथ मिलेगा. ये कर्व्ड बाउंड्री का लेंथ आपको फॉर्मूला से कैसे निकाल पाओगे, ये तो कर्व्ड बाउंड्री सर्किल हो जाएगा राइट. ये कर्व्ड बाउंड्री सर्किल बन जाएगा जिसका रेडियस आपके पास r दिया हुआ रहेगा. तो सर्किल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, इट इज़ अ इजी फार्मूला. पेरीमीटर इज़ नथिंग बट 2 पाई r. सो अब बस इस चीज़ को फॉर्मूला में रिप्लेस कर दो. कर्व सरफेस एरिया विल बी हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई r. ये 2 और 2 को आप डिवाइड कर दोगे, then your curved surface area will be equal to pi r l. This is the derivation कि कैसे आप कोन को ओपन करके फ्लैट में प्लेस करके ट्राइंगल से डिवाइड करके यू डिराइव द फॉर्मूला. बट आपको जो क्वेश्चंस आएगा, डेरिवेशन आने के चांसेस नहीं है. आपको क्वेश्चंस में सम्स में फॉर्मूला ही प्लेस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा. सो ये फॉर्मूला आप बहुत ध्यान से रख लो. फाइन. Curved surface area of a cone is pi r l. Fine. Where r is the radius of the base and l is your slant height. हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके, सी टोटल सरफेस एरिया से पहले मैं एक चीज़ आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ. कर्व सरफेस एरिया आई होप आप सबको पता चल गया. कर्व सरफेस एरिया इज नथिंग बट दिस अपर पार्ट राइट. अपर पार्ट ऑफ दिस कोन, दिस इज basically the surface by which the cone is surrounded. okay, जैसे मान लो आप बर्थडे कैप्स देखे हो, बर्थडे कैप्स में जिस जगह पे आपका शाइनी वाला पेपर लगा हुआ रहता है वो वाला कर्व सरफेस है. जहाँ पे आप आपके हेड में प्लेस करते हो वो वाला प्लेस नहीं. ठीक है, तो द टॉप पोर्शन इज बेसिकली योर कर्व सरफेस. बट जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम लोग को नीचे वाला सरफेस का भी निकालना होगा राइट. नीचे वाला मीन्स सपोज आपके पास जो कैप होता, अगर वो नीचे से भी कवर्ड होता, यू कवर इट विथ अ पेपर सिमिलर लाइक दैट, तो वो वाला एरिया अगर हम कैलकुलेट करते मीन्स कोन का ये वाला एरिया भी हम लोग अगर ऐड कर लेंगे तो इट विल बिकम द टोटल सरफेस एरिया. सो यू सी दिस वन इज अ सर्किल. सो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया इज पाई r स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया विल बी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्किल विच इज पाई r स्क्वायर. एंड कर्व सरफेस एरिया हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली डिराइव्ड किए, पाई r l, and this area is pi r square. Therefore total surface area is equal to pi r l plus r. This is your second most important formula in this section. यही दो फॉर्मूला है, एक है CSA is equal to pi r l and the second is, this is your first formula and this is your second formula. यही दो फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चंस आएंगे and you have to solve them. Fine. And one more thing I think I missed telling you in beginning, वो क्या है, let me first clear the pen markings. हाँ, so यहाँ पे मैं छोटे से let me keep it for you, pi
R L. Okay, this is your first formula and this is your second formula. That is very very important. Now one more thing you will see in your questions that आपको हर टाइम ना ये R H L ये तीनों वैल्यूज नहीं दे हुए रहेंगे, ठीक है. You will get any two values out of three values and you will have to find out the third one depending on the need of the question. So ये एक बहुत सिंपल easy फॉर्मूला है. ये आप कैसे अगर आपको दो वैल्यूज़ दिया हुआ रहेगा आप थर्ड वाला कैसे निकालोगे. आपको हमेशा याद रखना है इट इज़ अ राइट एंगल्ड कोन. ओके, राइट एंगुलर कोन मीन्स यहाँ पे राइट एंगल है, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया और ये दोनों तरफ ये भी एल है, ये भी स्लांट हाइट एल है. सो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, ठीक है. बेसिकली एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अगर आपको एल निकालना पड़े सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला. सो ये तीन फॉर्मूला पे आपका ये पूरा सेक्शन डिपेंडेंट है. वंस यू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये फॉर्मूलाज में कैसे लाइक हाउ यू डिराइव इट एंड वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज, आप मान लो आपका क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा. अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है. ये एक एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी बुक से. ये मैंने लास्ट एग्जाम्पल भी लास्ट वाला लिया है और एक्सरसाइज का भी एक सम सॉल्व किया है, वो भी लास्ट वाला लिया है. जनरली हम सबको लास्ट वाला क्वेश्चन टफेस्ट लगता है, इसलिए मैंने लास्ट वाला सॉल्व करवाने का ट्राई किया है. After this you try to do the other questions by yourself. Let me know if you have any issues. Okay, please reach out to me if you need any kind of help. We are always there to help you out. So let us try to solve this example. Okay, first let's read the question. What is it telling? A corn cob a corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. सो इट इज़ टेलिंग कि आपको कॉर्न कॉब है और इट इज़ अ कोन. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्ट्राइकिंग थिंग. देन रेडियस दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर. ओके, सो फ्रॉम दिस ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द कोन. कोन दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट हम लोग मार्क कर लेंगे. योर आर एंड यू हैव द H, right? Now next what is telling? If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains would you find on the entire cob. Okay, so ये question में हम लोग को क्या बोल रहा है कि surface, ये जो कोन का सरफेस है टोटल, ठीक है, ये टोटल सरफेस. यहाँ पे आप एक बात बोलो, आप खुद से सोचने की ट्राई करो. यहाँ पे हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया लेंगे. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी विल टेक द कर्व सरफेस एरिया. ओके, टोटल सरफेस हम लोग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो बेस है, ये बेस में कॉर्न कॉब्स नहीं रहता है. बेस इज प्लांटेड टू द ट्री. कॉर्न कॉब्स कहाँ पे रहता है? इट्स ऑन दिस टॉप पोर्शन, इट्स नॉट ऑन द बेस. ये कर्व सरफेस एरिया में रहता है. सो हम लोग यहाँ पे लेंगे कर्व सरफेस एरिया. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. वी विल डू एवरीथिंग ऑन द कर्व सरफेस एरिया. अभी बोल रहे हैं कि जो टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा उसका हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन्स रहता है. तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि टोटल कितना ग्रेन्स रह पाएगा ये पूरा कॉर्न कॉब में. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले इसका CSA कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, राइट. अब आप देखो क्वेश्चन में आपको L नहीं दिया हुआ है. यू हैव R, यू हैव H. That means you have to stress on Pythagoras theorem, right? आपको Pythagoras theorem यहाँ पे यूज करना होगा. Right? Pythagoras theorem में what is the value of L? L is equal to root over of H square plus R square.
So you do that. L is equal to root over of 2.1 centimeter square plus 20 centimeter square. So this will be coming to 20, ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है. This will be coming to 20.11 centimeter. So now you have L. अब आपके पास जब L आ गया है तो कर्व सरफेस एरिया में डाल लो. पाई आप 22/7 ले लो. पाई आप 22/7 ले लो. रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर इंटू योर L इज 20.11 सेंटीमीटर. सो कर्व सरफेस एरिया आपका कितना आ गया, CA से मल्टीप्लाई करके टोटल आपका वैल्यू आ जाएगा समथिंग अराउंड 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब जब वैल्यू डालोगे, अभी बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि इन ईच सेंटीमीटर स्क्वायर 4 ग्रेन्स है. तो आप यूनिटरी मेथड आप लगाओ. इन 1 centimeter square 4 grains. So therefore in 132.73 centimeter square how many grains? 132.73 into 4, which is equal to 532.992 या 93 ऐसा कुछ आएगा आपके पास, 92. So you do almost 531 grains, right? This is your answer. I think you've all understood. आपको पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना पड़ेगा और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर सेंटीमीटर में 4 ग्रेन्स है, तो टोटल हाउ मेनी ग्रेन्स आर पॉसिबल? 531 grains. So this is how you can solve your example question. This is the last example from NCERT book. अभी हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है. ओके, सो व्हाट इट इज टेलिंग, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड. ठीक है, सो बेसिकली एक आपका बस स्टॉप है, जो ये रोड है, रोड के साइड में बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है. एंड व्हाट दे आर यूजिंग 50 हॉलो कोन्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ईच कोन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर. आप नोट रखो, यहाँ पे डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, रेडियस नहीं बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है. दैट मीन्स आपको यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स हाइट इज 1 मीटर. हाइट इज गिवन. What it is asking us, if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? So यहाँ पे basically क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बस स्टॉप में बैरिकेड किया गया है उसमें 50 हॉलो कोन्स यूज़ किया है. ओके, फर्स्ट थिंग्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हॉलो कोन्स? हॉलो कोन्स मीन्स बर्थडे कैप्स. कुछ कवर नहीं किया हुआ है, बस कर्व सरफेस है, दैट मीन्स हॉलो कोन्स, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट कैच. हॉलो कोन्स मतलब कवरिंग नहीं है, टोटल सरफेस एरिया हम लोग को नहीं चाहिए, कर्व सरफेस एरिया से काम चल जाएगा. दिस इज द फर्स्ट कैच. सेकेंड थिंग इज, कोन का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर से हम लोग को रेडियस निकालना है. हाइट इज गिवन. Now they are asking us if the outer side of each cone is to be painted. So outer side anyway means curved surface area ही paint करेंगे क्योंकि hollow cone है. And the cost of painting is given. So basically what we need to do is we need to find the curved surface area of each cone from the diameter and height given. Then we will have to multiply with the cost of painting. एंड इट इज़ टोल्ड कि पाई आप 3.14 यूज़ करो एंड रूट ओवर ऑफ 1.04 को रूट ओवर ऑफ 1.02 यूज़ किया जाए. सो लेट्स सी. पहले तो आपको क्वेश्चंस मिले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो. डायग्राम में क्या दिया हुआ है? सी, डायमीटर आपको बोला था
diameter is equal to 40 centimeter. So diameter is what? Diameter is equal to 2 into radius, so radius becomes 20 centimeter. And height आपको दिया हुआ है, this is 20 centimeter and height is 1 meter. Sorry, my mistake, height is 1 meter. Okay. अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला गया है, कॉस्ट इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर. सो जब मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं तो इट इज़ बेटर आप सारे यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लो. इट इज़ फॉर योर ईजी, सो यू विल बी एबल टू डू इट ईजली. सो रेडियस बिकम्स 0.2 मीटर, राइट. नाउ आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, आप स्लांट हाइट निकाल लो बाय सेम पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि आपको कर्व सरफेस यूज़ करना है तो आपको तो एल चाहिए होगा, तो आप एल इज़ इक्वल टू √/h² प्लस r² कर लो, विच इज़ इक्वल टू √1² प्लस 0.2 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू √1.04. अब ये भी आपको शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है. येस, करेक्ट. क्वेश्चन में बोला गया है कि √1.04 शुड बी टेकन एज 1.02. देयरफॉर योर एल बिकम्स 1.02. नाउ यू हैव पाई, आर एंड एल. अब कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं. कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल, विच इज़ इक्वल टू पाई 3.14 into radius is 0.2 into L is 1.02 meter square total, which is equal to 0.64056 meter square. अभी आप डेसिमल के बाद बहुत सारा रहने दो. यू डोंट रिमूव इट और यू डोंट राउंड इट अप राइट नाउ. पहले आप टोटल कैलकुलेट कर लो. जब कॉस्ट फाइनल आंसर आएगा दैट टाइम वी विल राउंड अप. ओके, सो दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 cone. नाउ यू हैव 50 cones. देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 cones इज इक्वल टू 50 into 0.64056 meter square, which is equal to 32.028 मीटर स्क्वायर. नाउ आपको 50 कोन्स का सरफेस एरिया मिल गया. नाउ योर पेंटिंग कॉस्ट इज दिस इज पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹12 पर मीटर स्क्वायर. और हम लोग को कितना मीटर स्क्वायर कलर करना है? इतना 32.08. सो जस्ट मल्टीप्लाई इंटू 32.028, which is equal to ₹384.34. So this is your final answer rounded up to 2 decimal places. I hope you have understood what we have done. We found out the curved surface area. फिर आप total 50 cones का निकाले हैं. वही आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि पेंटिंग 50 कोन्स से बैरिकेड किया गया है और पेंट करना है उसके कर्व सरफेस. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो दैट्स प्रिटी मच फॉर टुडेज क्लास, टुडेज लेक्चर. हम लोग कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब रिलेटेड थोड़ा थ्योरी देखे हैं, डेरिवेशंस देखे हैं, 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. You try to solve the other questions by yourself, and if you need any help, please do reach out to us. And also please like, comment and share and subscribe to our YouTube channel so that we can continue to share such videos and try to help you out. Thank you.